to tell you, it was just to show you like how we are going to develop a website and what other thing we need. So once on that diagram we have seen we need a different thing, and before doing anything we should understand like how we can achieve this thing. First of all, if we have to create this kind of website, okay, what we need, we first have to identify like how what should be my approach. Okay, so we can design it using float mechanism, using grid mechanism, using flex mechanism, or using any framework mechanism. That's a different thing that we will use to design this thing. But to create the layout, to create the bone structure, okay, by using HTML, before doing anything we should first think like how your layout should look like. If I check any famous website, any website, okay, any famous website, I see all website follow these kind of structures only. If I open my Gmail or any place, or LinkedIn, okay, what you see? I don't know why it is too slow. Okay, okay. So my LinkedIn got open. Uh, okay, let it be open. What I'm trying to say, like for any website or anything, what they follow, they first create the structure, bare bone structure of their website. So before developing any page, what we will do, we will try to create some structure like this. How we can do this thing? So let's go on and create our structure, and then slowly we will move and see how we can include everything like this, and at that time only I will explain you rest of the thing. Okay, so what I will do, I will start web html dot html. Okay, where is this? Yeah, this is my page. Hmm. Again I need a volunteer. How we can do this thing? What, I am not creating a other page. What I will do, I will write style here, and whatever style I need, I will write it later on. Okay, and by seeing the design I come into this conclusion, like there would be one header on top, footer on bottom, and two section. We will have some section where we will add some menu, and in middle would be my main section. So if you go to any popular website, they follow these kind of patterns only, right? If you go to LinkedIn's also, they follow these kind of structure patterns. Like on top there are something, okay, then in middle there is a content, in left again there is one more box, on right again there is one more box. So even if I try to clone this thing, first I have to create this structure first. Okay, so let us do that thing. How we can do this thing? Okay, so for header I am using div. Why I am using div? Anybody can answer this? For top portion I will be using div. Why I will be using div? For block element. Yeah, since on top I see it take the full space. Okay,
डोंट वरी, क्लास के बाद बहुत सारी चीज समझ में आएगा। ओके, तो आई नो आई स्टार्टेड वेरी बैड, बट ठीक है, ये मेरे स्टार्ट है। इट शुड बी अ डिप, क्योंकि मैंने देखा कि ये पूरा स्पेस ले रहा है। व्हाट आई डिड, आई जस्ट गिवन अ डिप लाइक दिस। ओके, हेडर। then what should be my second approach to create the middle portion? Okay, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिडिल पोर्शन। ओके, एंड ऑन बॉटम, okay, I write the footer. Okay, now if I compare this with this thing, what are the thing which we got? We got this portion, top portion, this thing, the second portion, and the lower footer portion. It does not look like that, कुछ उसके तरह थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है, but it is this three portion, these three things we have got. Okay, नाउ इसके बाद हम और अब डायग्राम देखें और क्या चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमको 3 बॉक्स चाहिए। ओके, ये मेरा 20, ये अब ये 3 हम बॉक्स बना लेते हैं। लेट मी सी whether we can achieve that also, that thing also or not. Okay, how we can create that thing? हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मैं पहला बार मैं आप लोगों को डीप अप्रोच में ही दिखाता हूँ। ओके, देव, ये पहला बॉक्स, लेफ्ट, मिडल, राइट। आई थिंक मैंने गलत कर रहा हूँ, सॉरी। लेफ्ट, मिडल, राइट। लेट अस सी how it how it is shaping up. Okay, middle, right. Okay, जब ये किया, अच्छा एक बात और बता दे, फॉर नाउ आई विल यूज द फ्लोट मैकेनिज्म, जिससे हम लोग ये चीज को सारा को हम लोग एक जगह पे लाएंगे। वी विल ब्रिंग दिस थिंग ऑन वन प्लेस। सो एनीबडी हैव एन आइडिया लाइक हाउ वी कैन डू दिस थिंग? किस तरह से हम लोग किसी भी डिव को, अगर ये जो 3 डिव है, लेफ्ट, मिडल एंड राइट को, हम लोग अपने इस डायग्राम के हिसाब से या उस वेबसाइट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं? एनीबडी हैव एनी आइडिया फॉर दिस? Using flex, display flex, and नहीं नहीं, what I told for this time, mean flex is an advanced version. I will not go with the flex approach, I will go with the float approach. Okay, see, आप लोग आप लोगों को कभी भी कोई डिजाइनिंग करेंगे, जनरली इस डिजाइनिंग का 3 अप्रोच 4 अप्रोच रहता है। ठीक है, एक होता है फ्लोट अप्रोच, सेकंड है आपका ग्रिड अप्रोच, थर्ड है आपका अभी नया आया है फ्लेक्स, और फोर्थ है आपका कोई आपका फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क में कर रहे हैं उसका कुछ का फ्रेमवर्क होगा। तो बेसिक्स पे अगर जाएंगे, एकदम बेसिक्स पे, सीएसएस पे, तो फ्लोट अप्रोच इज द बेसिक्स वन। उसके बाद ग्रिड आया, देन फ्लेक्स आया, और अगर वी आर वर्किंग ऑन एनी फ्रेमवर्क, देन यू हैव टू फॉलो दैट फ्रेमवर्क अप्रोच। ओके, सो वी विल गो फॉर द फ्लोट अप्रोच। अब मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि मेरा हेडिंग हेडिंग तो चलो ठीक है, हेडिंग मेरा यहाँ है, और हेडिंग सिंस मेरा वो डिव है, तो इट विल टेक द फुल थिंग। इफ समबडी टेल यू टू ड्रॉ दिस थिंग, मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से डिव दे दिया। ठीक है, डिव से समथिंग इज हैपनिंग, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, और फिर हम उन लोग को धीरे धीरे करके सबको सुधारेंगे। एंड एंड विद दैट वी विल लर्न दोस थिंग्स आल्सो।
So what happened, everything, first we have to understand, like everything which we see in web, it generally try to follow the box approach और inline and block approach, ठीक है. तो inline approach से देखा, मेरा हेड अपना ठीक एक लाइन पूरा ले लिया. Now when we grow, this thing will grow, we don't have to worry about this. ये तीनों सेक्शन जो है, ये तीनों सेक्शन है, अगर हम ठीक से इसको होवर करेंगे, यहाँ से होवर करते हैं, ठीक है. मेरा मिडिल का तीनों सेक्शन इस डिप के अंदर आ रहा है, राइट. एज पर डायग्राम ये भी कुछ कुछ अपना शेप ठीक से ले रहा है, बट when I went inside, again it is taking the whole place. Okay, not the mean it wasn't ideal for me. मैं ये नहीं सोच रहा था. My approach was कि ये जो मेरा कुछ ऐसा होगा, this dip should look like this. Okay, और मैं इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक CSS लिख देता हूँ ताकि सारा चीज आप लोग समझ पाए. CSS का आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि CSS का दो अप्रोच है. यस, CSS का दो अप्रोच है. लेट मी शो यू दैट. CSS, HTML, CSS. ओके, या हाँ, सॉरी, CSS हम लोग तीन तरह से लिख सकते थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और आपका इनलाइन होता है, ठीक है. अगर हम लोग और एक बात है कि हम लोग CSS को क्लास सेलेक्ट और CSS सेलेक्टर भी बहुत तरह से होता है. 5 तरह का हम लोग का CSS सेलेक्टर होता है. एक होता है आपका क्लास, एक होता है आपका टैग, एक होता है आपका आईडी और आपका सूडो और आपका कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह बहुत तरह से हम लोग CSS को लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये देखिए, ये अगर डिव पे लिख दिया तो जो भी उसका डिव होगा उस पे ये काम करेगा, करेक्ट. ये अगर डॉट करके कोई नाम दे दिया, जो भी उसका आईडी लिखेंगे, जिसके अंदर भी हम वो आईडी लिखेंगे, उस आईडी के अंदर ये क्लास चला जाएगा. ओके, हैश लिखा तो जो भी, सॉरी उल्टा बोल दिया है, डॉट इज फॉर क्लास एंड या डॉट इज फॉर क्लास एंड हैश इज फॉर आईडी. ओके, तो जो भी उसका आईडी होगा ये नाम का, उसका ये क्लास ले लेगा. और भी कई तरीका होता है, और भी कई तरीका होता है आपका CSS को डालने का, लेकिन मैं चाह रहा था आपको यहाँ पे कुछ आपका CSS हम लोग डालते हैं. ओके ओके ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चीज ले करके चलो खुद से लिख लेता हूँ, घर का खोजने से क्या है. अच्छा, can anybody will tell what will happen if I write this? What it will do? Wait. No. Border ठीक तो था. BORDER, border. How we can add a border here? Anybody knows how we can add a border in there? सर जी, कहाँ गया बॉर्डर? कुछ नहीं लिखते हैं ना, दिमाग से भी उड़ जाता. CSS बैकग्राउंड. ओके, मिल गया. मेरा गलती क्या था तब? गलती तो मेरा कुछ नहीं था, दिख क्यों नहीं रहा? ओके, दिख गया. वो कलर सेम हो गया था इसलिए. ओके, व्हाट वी गॉट हेयर, हम लोग यहाँ पे क्या मिला हमको. हम लोग जब ये लिखे और इसे जब हम लोग रिफ्रेश किए, सी हम लोग का अब यहाँ से ये डायग्राम से कुछ कुछ
मिलना स्टार्ट हुआ, राइट। लेकिन अब हम लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों भी एक में है, लेकिन ये पूरा फुल विथ ले रहा है, ठीक है। मेरा माई मोटो इज टू मेक इट समथिंग लाइक दिस। तो एक चीज अभी हम लोग सीख लिए कि अगर आप लोग को बॉर्डर देना रहेगा, इसका अगर बॉक्स का अगर साइड में अगर कुछ दिखाना पड़ता है तो वो बॉर्डर कर करके उसका नाम देते हैं बॉर्डर। जो बॉर्डर जितना मोटा बॉर्डर देना पिक्सल में वो पिक्सल, सॉलिड मीन वो पूरा लाइन रहेगा। इससे ये बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, डॉटेड वॉटेड, ठीक है, वो अब देख लेना। और ये कलर्स होगा, जो कलर हम लोग को यूज करना है। तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक पे लेके आया था थोड़ा। ओके, नाउ पहला काम तो हो गया कि चलिए ठीक है, मैंने बॉर्डर दे दिया। अब अगर मैं इन सब को अगर मुझे कुछ कुछ हिसाब में लाना है, मैं किस अप्रोच पे जा रहा हूँ अभी, मैं अभी फ्लोट के अप्रोच में जा रहा हूँ। तो मुझे इसको कुछ विथ में इसको ये फ्लोट और या फ्लोट या मार्जिन बोलते हैं ना, ठीक है, फ्लोट ही ठीक है। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं 3 क्लास लिखूंगा, ठीक है। क्लास कैसे लिखूंगा, डॉट करके, जो क्लास का नाम रहेगा लेफ्ट दूंगा। पहला मैंने एक तो लेफ्ट दिया, फिर एक डॉट करूंगा, मेन लिखूंगा, एक और क्लास बनाऊंगा, डॉट दिया और राइट दिया। ओके, एनीबॉडी कैन हेल्प मी कि क्या ऐसा लिखूंगा ये 3 में, और वो 3 क्लास को मैं यहाँ यूज करूंगा, इट विल change my box to something like this। किसी को पता है सर जी? Now you see this thing। अब क्या हुआ, कोई है मेरे साथ कि मैं अकेला हूँ? एक दो तीन तो है। हाँ, now what happened, let me see this thing, not this, yeah, this one। now it take now it become like this, right। अभी भी हम लोग का आइडियल, अभी भी हम लोग का पोजीशन में नहीं आया है। तो कैसे करके इसको ला सकते हैं, एनीबॉडी हैव एनी क्लू विद दिस? ये देखिए, मैंने जो इसे विद दिया 20%, 60%, 20%, तो ये जो था ये आपका सारा चीज को तो ठीक ठाक लेके आ गया, परसेंटेज इसे कम कर दे रहा है, बट स्टिल वो एक लाइन में नहीं आ रहा है, वो तीनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ये जो डिव था, डिव हैज इट ओन टेंडेंसी, इसका खुद का एक प्रॉपर्टी है जो उसको बोलता है भाई तुमको पूरा स्पेस लोगे, पूरा स्पेस लोगे, पूरा स्पेस लोगे। पर मैंने जब यहाँ पे सीएसएस से कुछ विथ दे दिया कि आप इतना ही विथ लोगे, देन व्हाट हैपनिंग, ये जब इसको जब जगह खाली मिल रहा है, वो नीचे वाले को पुश कर दे रहा है नीचे, क्योंकि वो डिव है। और डिव का खुद का ओन प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा ब्लॉक लेगा, वो पूरा लेंथ लेगा। तो इसे कैसे कि हम इसको ब्लॉक से हम किस तरह से हम इसको इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी क्लास को बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, किसी को पता है? एनीबॉडी नोस? Using span tag. यूजिंग, नहीं नहीं, हम Span लोग tag. स्पैन नहीं यूज करेंगे। सी, Okay. दैट्स द ट्रिक कि हम लोग इसे जैसा है वैसे ही रहने देंगे, पर हम लोग इसका बिहेवियर को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर हम Display स्पैन inline. से There इसे is one स्पैन property. का प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पैन? स्पैन विल टेक द स्पेस ऑफ द
कंटेंट ओनली, माने जितना दूर तक लेफ्ट लिखा है, इफ आई हैड यूज स्पैन, वो उतना ही स्पेस लेता। यू गॉट माय पॉइंट? अगर हम इस पे स्पैन लिख देते तो तीनों सामने सामने आया था, बट इट विल नॉट टेक द स्पेस प्रॉपरली। उसके लिए आपको कुछ विथ खुद हार्ड कोडेड लिखना पड़ता, जिससे ये पेज ना डायनेमिक लास्ट में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो डीप पे क्या होता है कि हम जब परसेंटेज लिखे, ये 100% आपका डिवाइस पे तो डिपेंडेंट नहीं हो रहा, कोई भी डिवाइस होगा उस पर काम चल जाएगा। लेकिन स्पैन का क्या, मैंने कि उसका बेसिक टेंडेंसी स्पैन का जो होता है वो होता है कि भाई मेरा जो जितना कंटेंट है जितना बड़ा, मैं उतना बड़ा जगह लूंगा, तो स्पैन नहीं हो सकता इसलिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्लास में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? लेट मी लेट मी गो देयर। ओके, ये नहीं, ये वाला मैंने बहुत ज्यादा ही पेज लिख दिया और मेरा लैपटॉप भी आज स्लो है। ओके। हम्म हम्म this what happening? This is form responsive 01. Mm-hmm. Yep. Where is the style? Style को तो मैंने क्या किया है? अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो देखिए, ये मेरा डिव का, सॉरी, ठीक था ना, इसमें कुछ चीज लिखना भूल गया। ठीक है। हम्म। मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा, ठीक है, ओवरफ्लो ऑटो। ये क्या करेगा, अगर मैं ऐड करता हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ कि क्या करेगा। जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ, और अब मैंने क्या बोला था, मैं आपको पहला जो अप्रोच करना चाह रहा हूँ, वो क्या अप्रोच करना चाह रहा हूँ, फ्लोट के थ्रू हम ये डिजाइन को ठीक करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने ये ओवरफ्लो ऑटो दे दिया। ऑटो क्या करेगा, जो लेंथ होगा ना, उसके हिसाब से वो उसको ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, वो डिजायर जो बिहेवियर मैंने कि जिस तरह का उसको लेंथ फिट मिलेगा, वो उस जगह उसको लाके फिक्स कर देगा। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो तुम डिव हो, इसके अंदर अगर कोई डिव उस तरह का आए जो उसका बिहेवियर मैंने कि तुमने इसमें अगर आने के लिए फिट हो जाए, तो उसको तुम फिट कर लो, उसको तुम उसी एक लाइन में डाल दो। ठीक है, डिव का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है मैंने कि इनलाइन ब्लॉक बिहेवियर पूरा होता है। लेकिन इससे क्या होगा, वो पूरा होगा, लेकिन उसमें जो फिट हो पाएगा उसको उसमें फिट कर लेगा। फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का अप्रोच है फ्लोट का, इसको फ्लोट कराना पड़ेगा। फ्लोट लेफ्ट क्या करता है बताइए? फ्लोट लेफ्ट क्या करता है, एनीबॉडी नोस? क्या बात है, उस पे हो रहा, इस पे क्यों नहीं हो रहा? दो हुआ, तीसरा क्यों नहीं हुआ? थर्ड वाला क्यों नहीं हुआ? ये बॉर्डर की वजह से हो रहा है। अगर क्योंकि ये बॉर्डर भी कुछ स्पेस ले रहा है जिसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये देखिए आपका ठीक ले लिया। ठीक है, नाउ मेरा क्वेश्चन है, ये ऐसा हुआ क्यों?
एनीबडी हैव एनी आंसर? मैं इसे भी 95 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बॉर्डर दिया है जिसके वजह से वो कुछ स्पेस ले रहा है। अब देखिए मेरा कुछ काम हो रहा है, ठीक है, मैं बॉर्डर हटा दूंगा जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग कुछ अपने डिजाइन की तरफ कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं, जो एचटीएमएल हम लोग को लास्ट में बनाना है वो कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, फ्लोट लेफ्ट देने से ये इस तरह से काम क्यों हो गया? मैंने दो क्लास दिया, एक दिया ओवरफ्लो, देखिए यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो ऑटो दिया, एंड देन इस क्लास में मैंने फ्लोट लेफ्ट दे दिया। व्हाट हैपेंड इन दिस विद दिस टू थिंग? मैंने एक्सप्लेन किया, कोई बता पाएगा फिर से दोस्तों? कुछ एक्सप्लेनेशन? अच्छा मैं बता देता हूँ। ये ओवरफ्लो ऑटो करने से क्या हो गया कि ये जो टेक्स्ट में, ये जो डिजाइन में इसको आने के लिए दे दे रहा है, ऑटोमेटिकली इसको आने के लिए दे दे रहा है, ठीक है। उसको बोल रहा है कि ठीक है जो जगह रहेगा उसको तुम फुल कर लेना है, जो आएगा टेक्स्ट। ये ब्लॉक, इसका बिहेवियर ब्लॉक था, लेकिन मैंने विद दे दिया। विद देने से क्या हुआ, इसके बिहेवियर को मैंने पूरा लाइन के जगह, पूरा लाइन के जगह मैंने इसको फिक्स कर दिया कि जो आपको विथ मिल रहा है उसका इतना इतना परसेंटेज करें। तो जब हम लोग जब फ्लोट बिहेवियर से अप्रोच से जब हम लोग डिजाइन करेंगे, ये पुराना टाइम में इस तरह से डिजाइन होता था, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये तीनों मिलके 100% हो जाए, तब मेरा रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट का मेंटेन रहेगा। और यही प्रॉब्लम था कि अगर बीच में अगर कुछ इस तरह कोई बॉर्डर फॉर्डर कोई क्लास दे देते, सारा परसेंटेज ब्रेक हो जाता, जिसके लिए फ्लेक्स और ग्रेड सिस्टम बाद में आया, ठीक है। लेकिन जस्ट हम ये डिजाइन को कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ के वो वाले डिजाइन में हम लोग उसमें चल के देखते हैं कि कितना आसानी से इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किए ये तीनों में हम लोग कुछ कुछ क्लास दे देते हैं। लेट इट बी। क्या करें सर? हाँ, हेडिंग में मेरा हेडर आना चाहिए, हेडिंग आना चाहिए, और क्या था, और ये जो टेक्स्ट है वो मिडिल में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे सर जी? तो हेडिंग में भी हम एक तो क्लास बना लेते हैं। हेडर्स, ठीक है, इस क्लास को यहाँ दे देते हैं। मजा नहीं आ रहा सर। ठीक है, और अब हम कुछ कुछ क्लास को यहाँ से ला करके हम इसमें देना देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में हम एक मेन्यू बना लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट की जगह हम बोल देते हैं कि भाई ये मेरा मेन्यू होगा, मेन्यू कार्ड होगा। तो ये लेफ्ट को हम लेफ्ट में डाल दिए, मेन्यू कर दिए, ओके। अच्छा अब हम इसी को डायरेक्ट ला के यहाँ कॉपी करें, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मेरा स्ट्रक्चर बन गया, एंड नाउ डिजाइन मेरा कुछ कंटेंट चेंज किए, इट बिकम लाइक दिस। लेट मी शो दिस थिंग। अब अब बताइए किसमें मैंने कितना चेंज किया होगा कोड में फर्स्ट टाइम के बाद से? एनीवन? तो मैंने क्या किया, ये चीज को कॉपी किया और सेम काम किया। मैं अभी सीएसएस को रहने देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को एचटीएमएल को अपना ठीक करना था। तो एचटीएमएल में क्या था, ये मैंने एक डिव बनाया था, इसके अंदर तीन डिव था। ये पहला डिव, ये दूसरा डिव, और ये तीसरा डिव, ठीक है। पहला डिव मेरा लेफ्ट, दूसरा डिव मेरा मिडिल, तीसरा डिव मेरा राइट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किया, कुछ एंकर टैग दे दिया। ऐसा मैंने कुछ नैप बार के लिए मैंने कुछ एंकर टैग दे दिया। सेकेंड टिप डिप में मैंने कुछ नहीं किया। और हेडिंग हेडिंग को टॉप में जो मैंने हेडर्स जो डिप किया था उसमें मैंने एक H1 करके हेलो वर्ल्ड दे दिया, कुछ बड़ा काम नहीं है। मिडिल वाला में भी मैंने H2 कर करके, सिंस ये सेकेंड हेडिंग होगा, H2 करके एक लॉर पिप्सन करके पैराग्राफ करके दे दिया। और थर्ड पे में मैंने H2 करके एक पैराग्राफ करके दे दिया।
और ये मेरा बॉटम का सेक्शन है जिसमें मैंने जस्ट कॉपीराइट लिख दिया। तो अगर आप वो पहला स्ट्रक्चर अगर आप ठीक से बना लेंगे तो उसके बाद इसको जितना बढ़ाना चाहे, जिस तरह से बढ़ाना चाहे, आराम से बढ़ जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे कि सब में वही क्या हुआ, जैसे कि ये जो लेफ्ट मेन्यू जो था, इसके साथ साथ ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने से क्या हुआ, ये जितना भी ये टेक्स्ट है, वॉट एवर टेक्स्ट वी कैन सी हियर, दिस टेक्स्ट आर कमिंग ऑन सेंटर। ये हेडर का भी टेक्स्ट आपका सेंटर में है, इसलिए वो H1 करके हेडर्स में भी यहाँ पे इनलाइन दिया हुआ है CSS, ये टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर दिया गया, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर दिस बॉडी, बॉडी के लिए भी सेम है भाई, बॉडी के लिए भी आपका ये मेन है, मेन में आपका HTML पैराग्राफ, और मेन का क्लास में जस्ट आप कुछ नहीं दिए, ठीक है, जस्ट आप पैडिंग दे दिए, क्योंकि अब देखेंगे इट इज नॉट कमिंग इन सेंटर, इट इज कमिंग ऑन लेफ्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में आता है। राइट का सेक्शन में भी जस्ट उस डिव के अंदर ही, जस्ट वो डिव जो था राइट में मैंने क्लास कर दिया, और यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ कलर्स दे दिया। तो बैकग्राउंड में आप कलर्स दे सकते हैं, बैकग्राउंड में आप इमेज भी दे सकते हैं। अगर वहाँ कुछ अगर हमको इमेज दिखाना पड़ता तो हम इस बैकग्राउंड का हटा देते, बंद कर देते कलर्स को, और वहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज में हम URL दे देते, इमेजेस करके, चलिए कुछ ऐसा कुछ दे देते। अब क्या होता, ये आपका इमेज आपका बैकग्राउंड में सेट हो जाता। जनरली लाइटर इमेज ही देना चाहिए, डार्क इमेज नहीं, जो कि उन्हें सेट कर जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये वेबसाइट स्टार्ट होगा, माने कि शेप लेना, और ये आपका पहला बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप करेंगे, ये आपका यहाँ से अच्छा स्टार्ट होता है, ठीक है। सर, अगर वो बॉर्डर लगा होता, बॉर्डर वाली लाइन, तो इसका पेज का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। कहाँ पे बॉर्डर वन लाइन, देखिए बॉर्डर साइड, हाँ बॉर्डर, अगर हम देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का परसेंटेज अप्रोच चल रहा है, राइट। वी हैव यूज द जी परसेंटेज अप्रोच, ये तीनों अप्रोच मिल करके, ये तीनों चीज मिल करके आपका कुछ 100% हो रहा है। मैंने फुल 100% ले लिया, आई हैवंट गिवन एनी स्पेस, क्योंकि मेन्यू के लिए भी 60, विथ के लिए भी 20, और ये लेफ्ट के लिए भी 20। अब इसी पे अगर बॉर्डर देंगे, बॉर्डर इटसेल्फ हैव सम साइज, मैंने 2 पिक्सल दे दिया, 2 पिक्सल भी तो साइज हो गया ना, इट इज मोर देन 100%। यस तो ये ऑटो फ्लो वाला जब हमने यहाँ जब क्लास दे दिया था, क्लास ओवरफ्लो ऑटो, ऑटो क्या करेगा कि इसको एडजस्ट करना चाहेगा ऑटोमेटिकली। इफ इट इज विद इन 100 उसको रहने देगा, और वो अगर 1 हो गया, माने आपका फुल, मेरे मेरे स्क्रीन का साइज है 1247 पिक्सल, ठीक है। अब वहां अगर 2 हो गया तो पिक्सल हो गया, दैट इज ग्रेटर देन दिस स्क्रीन, तो उसे ब्रेक करके नीचे फेंक देगा, ओके सर। राइट। बिकॉज लेफ्ट राइट में वो 2 पिक्सल 4-5 पिक्सल आपका बढ़ जाता है, लेफ्ट राइट और सारे डेब में लेकर के, तो 5 पिक्सल बढ़ गया और इसलिए वो फेंक दिया। यहाँ आप कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, देखिए कुछ ना ज्यादा मैंने क्लास यूज किया ना कुछ किया। और किस तरह से शेप शेप को एकदम आसान से ही और ये देखिए, इससे आपका ये वेबसाइट, ये डिजाइन आपका कुछ इस तरह का शेप ले लिया, राइट। यस और ये डिजाइन अगर आप इसमें देखेंगे, समथिंग लाइक दिस, हाँ इसमें CSS अच्छा है, क्लास अच्छा है, ब्ला 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 एवरीथिंग, बट इट इज शेपिंग लाइक दिस, राइट। यस ये इस तरह का शेप होने लगा। अब हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोग टर्म्स यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लास यूज करेंगे, ताकि ये और ब्यूटीफुल हो जाए या फंक्शनैलिटी बढ़ता चला जाए। तो बेसिक जब भी कभी भी CSS का काम करना चाहे, तो बेसिकली पहले स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें कि हाउ माय div विल रिसाइड, मेन मेरा div क्या होगा, वो कहाँ कहाँ होगा। इसका 3 अप्रोच है, जैसे मैंने पहला कहा कि हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। फ्लोट, ये फ्लोट आज के टाइम में यूज होता है, लेकिन इसे यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अप्रोच अच्छा नहीं है, ये पुराने टाइम में यूज हुआ करता था विद दे करके। अभी नया टाइम में क्या है, फ्लेक्स या ग्रिड सिस्टम सबसे अच्छा है अभी के टाइम में। तो इसी इसी सेम डिजाइन को अगर हम लोग ग्रिड में करना चाहते हैं, अच्छा एक और चीज आपको बताना भूल गए, लेट मी क्लोज दिस थिंग।
ओके, सॉरी मैंने इसे भी कॉपी कर लिया, मुझे ये कॉपी नहीं करना। नो व्हेन वी कम हेयर और मैं इसको अगर मैं मोबाइल में देखता हूँ, ओके ओके, let me increase this size to 100%. ओके ओके, तो ये क्या होता है, ये मेरा इस तरह का शो होता है राइट, ये इस पोर्शन शो हो रहा है, ये डिजाइन चेंज हो गया, इसे बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, आप मोबाइल के हिसाब से आप इसको रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, आपका टैब में क्या होगा उसके हिसाब से ये शो हो रहा है। अब एक चीज देखेंगे, टैब में मेरा ये दो पोर्शन शो हो रहा है राइट, यस सर। मेरा मोबाइल्स में मेरा खाली ये लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन तो गैप हुआ था, मोबाइल में मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ही गैप हो जाएगा राइट, ओनली मिडिल पोर्शन शो हो रहा है। तो ये चीज कैसे हुआ, ये चीज कैसे कर रहा है वो लोग क्या करता है, इसके लिए मीडिया क्वेरी यूज करता है, दे यूज मीडिया क्वेरी फॉर दिस। तो मीडिया क्वेरी कैसे लिखते हैं, आसान है, आप लोगों को मीडिया लिखना पड़ता है स्क्रीन के हिसाब से, मीडिया ओनली स्क्रीन, स्क्रीन के हिसाब से हम लोग क्या किया, बोला कि जिसका मैक्स विथ 650 तक होगा, मान लीजिए मेरा लैपटॉप का स्क्रीन का विथ है 1246, ओके, तो लैपटॉप में जैसा हम लिखा है उस तरह से काम करने, लेकिन जब ये चीज किसी ऐसे स्क्रीन में चलेगा जिसका स्क्रीन 620 पिक्सल तक है, जनरली मोबाइल बोल सकते हैं ठीक है, 720 से आपका टैब हो जाएगा, तो 650 पिक्सल तक है, तो उससे अगर छोटा हो रहा है, 620 पिक्सल से जो छोटा हो रहा है, उसके लिए ये जो मैंने क्लास लिखा था मेन, ठीक है, ये राइट और ये मेन्यू, ये तीनों जो क्लास जो लिखा था, ये तीनों क्लास दे देखिए इस तरह से नीचे नीचे चला गया। व्हाई इट वेंट देयर, बिकॉज हम लोग इसके लिए एक मीडिया क्वेरी लिखे, जब कोई बड़ा इसमें कोड नहीं लिखे, एकदम सिंपल कोड टू नो द बेसिक्स ऑफ दिस थिंग। क्या क्या लिखे यहाँ पर कि जब भी कोई ऐसा डिवाइस आएगा स्क्रीन के ऊपर मीडिया क्वेरी चला है जिसका स्क्रीन का मैक्सिमम साइज अगर 620 से पिक्सल से कम साइज का जो भी डिवाइस होगा, जनरली फोन होगा, उसके लिए क्या करना, ये जो हमने जो क्लास जो ये सब लिखा है विद जो लिखा है उसे ओवरराइट करना। ओके, सो व्हाट हैपनिंग, इससे हो क्या रहा है कि जब मैं इसको लैपटॉप पे देख रहा हूँ तो जो मेरा लिखा है वही काम चल रहा है, but when I change the device and go to some other device, okay, is it 200%? What? Why क्यों नहीं रहा 100%? 50, okay, okay. So now what happened? ये देखो, ये जो मेरा मेन्यू था, ये और नीचे जो ये है, ये सारा चीज नीचे चला गया, इट स्टार्ट टू टेक द 100% लेंथ ऑफ दैट दैट डेव, राइट। ये क्या हुआ है, हैंग कर गया। सो ये समझ में आया, नॉट ओनली दिस, ये खाली अपनी स्क्रीन पे नहीं, और भी बहुत सारा चीज हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस डाल सकते हैं। लेट मी शो, ये तो डाल दिया आपका, हाँ। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मेरा कलर अलग दिखना चाहिए, मेरा फॉन्ट अलग दिखना चाहिए, मेरा और भी सब चीज अलग दिखना चाहिए, तो इस तरह से मैं डिफरेंट स्क्रीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैं डाल सकता हूँ। क्या डाला मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा एकदम छोटा डिवाइस में जो एकदम छोटा जिसका स्क्रीन 400 पिक्सल है, उसका बॉडी का जो कलर जो है उसको ग्रीन कर देना,
होता है। अगर आप सेम वेबसाइट को आप आईफोन में देखोगे और सेम वेबसाइट को आप टैब में देखोगे और सेम वेबसाइट को आप कोई एंड्रॉइड फोन में देखोगे, देखोगे दे हैव डिफरेंट कलर वेरिएंट। उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, कुछ में मेन्यू भी चेंज दिखता है, जबकि आपका साइज सेम है स्क्रीन का। हाउ? ड्यू टू दिस, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक छोटे डिवाइस के लिए लाइट ग्रीन कर दिया, उससे जो टैब होगा उसके लिए मेरा जो कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो लैवेंडर कलर आ जाएगा। और और मोबाइल जो कि मोबाइल डिवाइस में जो देखेगा उसका स्क्रीन जो है वो मेरा जो जो साइज जो है 100 पिक्सल मैंने इस तरह से लंबा आ जाएगा। तो अगर हम इसको चल फिर से एक बार चेक करके देखते हैं कि इससे क्या हुआ, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम्म। छोटे में चल रहा हूँ, ये मेरा काम क्यों नहीं कर रही है रिस्पॉन्सिव। ओके, ये लिया ठीक। मैं रिस्पॉन्सिव इसको देखता हूँ क्या हुआ है यार। आईपैड में देखता हूँ कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। लेट मी ओपन न्यू स्क्रीन। ओके, इसे फिर से ओपन करता हूँ। सी व्हाट हैपेंड, यहाँ पे आपका कलर जो है थोड़ा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि ये जो मैंने ये स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया था, राइट। अब मैं अगर मैं इसे मैं चला जाता हूँ डिफरेंट डिवाइस में। ये मेरा, हाँ, ये देखिए ये कलर आपका ऑप्शन आपका चेंज हो गया, राइट। तो ये बेस्ड ऑन आई वुड से स्क्रीन साइज हम लोग बहुत सारा चीज काम कर सकते हैं, बहुत सारा मेन्यू को हम लोग हाइड कर सकते हैं। हाँ, ये मिल गया मुझे। बहुत सारा मेन्यू को हम लोग हाइड कर सकते हैं और बहुत सारे ये देखिए कलर देखिए आपका स्क्रीन साइज के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर, राइट। So these things are done with the help of this media query। तो अगर आपको पहले कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आई थिंक ये 3 पेज का यू शुड हैव बी वेरी कंफर्टेबल कि किस तरह से हम लोग ये हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे कि क्या देंगे जो मेरा डिजाइन इस तरह से हिलता है, और क्या देंगे कि हम लोग इसको मीडिया क्वेरी में अच्छे से इसे रन कर पाए। कोई बड़ा चीज नहीं हुआ, बट इट मेक योर वेबसाइट एज रेस्पॉन्सिव। इसके कारण क्या हुआ, योर वेबसाइट बिकम रेस्पॉन्सिव। ओके, अब मैं इसी में ही अगर मैं थोड़ा और अच्छा करना चाहता, इसी वेबसाइट को मैंने क्या करा, मैं थोड़ा सा और अगर अच्छा करना चाह रहा था तो मैंने इसमें ज्यादा कुछ इतना ऐड नहीं किया। क्या किया, लेट मी शो यू। ओके, नाउ दैट डिजाइन, दिस डिजाइन got evolved into the following design. This design got evolved and become something like this, right? So what would had happened there? हम लोग चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज इसमें ऐड किए, ठीक है। This header remain as it is, okay। अब मैंने ये जो नैप बार है, ओके, अब अगर हम इस डिजाइन को कंपेयर करें, विद द ओल्ड डिजाइन, तो अब मेरा जब ये ड्राइंग जब बनेगा, अब मैं जब स्केच बनाना चाहूंगा तो मेरा स्केच कुछ नया होगा, राइट। क्या होगा, ओके, मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, मेरा एक टॉप पोर्शन है, ओके, टॉप पोर्शन है, देन यहाँ पर एक और पोर्शन है, राइट। तो यहाँ पर एक और डिव आएगा,
यहाँ पर मेरा एक और छोटा सा पोर्शन है, राइट। देन क्या है, अच्छा, अब मेरा यहाँ पर ये दो हिस्से में ब्रेक किया हुआ है, राइट। ये देखिए दो हिस्से में मेरा ब्रेक किया हुआ, और नीचे मेरा क्या है, मेरा फुटर है। तो मेरा डिप का जो जाएगा, मेरा डिप का जो स्ट्रक्चर जाएगा, एक हिस्सा यहाँ जा रहा है, एक हिस्सा यहाँ आ रहा है, ओके। और लास्ट में मेरा ये हिस्सा मेरा फुटर होगा। एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी फॉर दिस? क्योंकि भाई अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं, इस वेबसाइट को बनाने की कोशिश करूं, तो ये आपका यही चीज होगा, बेसिक तो आपका ये है। अब अंदर का अलग अलग आपका डिजाइनिंग है, लेकिन आपका आपका बोन स्ट्रक्चर जो है इसका, अगर मैं इसे देखता हूं तो यही है, राइट। तो यही किया मैंने। तो मेरे हिसाब से एक पहला डिव होगा, एक दूसरा डिव होगा, और एक थर्ड डिव होगा, जिसके अंदर ये दो पोर्शन होगा, ये दो एक साथ अटैच होगा, राइट। और अंदर में अगेन दो डिव होगा। इसका हो सकता है कि मेरा विथ ऐड समथिंग, ये मेरा फुल विथ लेना, ये भी मेरा फुल विथ लेना, लेकिन इसका हाइट कम है। ये मेरा कह सकते कि ये मेरा हो सकता है कि 75% मेरा विथ लेगा, और ये मेरा कितना लेगा, ये 25% मेरा विथ लेगा, ठीक है। और नीचे का ये फुटर है, फुटर मेरा फुल विथ रहेगा। अगर आप ये चीज ब्रेक कर लीजिए अपना वेबसाइट बनाने से पहले या कुछ भी करने से पहले, यू विल डू एनीथिंग। और इसके अंदर अगेन देखा, इसके अंदर हम अगेन देखते हैं कि अलग अलग पोर्शन है, 1 2 3, ठीक है। तो मेरे ये डायग्राम के अंदर, इसके अंदर मेरा अगेन मल्टीपल डिव है, ठीक है। लेकिन मैं पहले पहले मैं मेन स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एंड देन आई विल गो टू दिस थिंग। और अगेन मेरा मेन जो है, मेन डिव के अंदर भी ये देखिए एक अलग पोर्शन है, 1 2 सेक्शंस है, दो सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, राइट। अगर मैं अपने एस्टिमेट को ये अगर ठीक से अगर बता दूं कि अच्छा ये चीज इस तरह का है, और देन मैं इसमें CSS अप्लाई करूं, यू विल सी आपका डिजाइन साफ सुथरा होगा, सारा चीज ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए इसको डायग्राम करने के लिए, इसको करने के लिए अगर हम इसी को रेफरेंस लेकर के अब मेरा ये कोड किया हुआ है, तो आप अब मैं जब करूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। पहला चीज क्या है, पहला ये चीज करने से पहले क्या था, पहला ये चीज हमको यहाँ आने से पहले, इंटरनल जाने से पहले, पहला हमको तो ये तीन सेक्शन चाहिए था। पहला ये हेडर, देन ये नैप बार, देन ये मेन कंटेंट, और देन ये फुटर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिव, दो डिव, तीन डिव, चार डिव। क्लियर सर? कोई है सर? यस सर। मैंने अप्रोच पे, यहाँ पे मैंने अपना डायग्राम बना, ये आपको फिग्मा डायग्राम मिले जो भी मिले, आपको पहले फर्स्ट अप्रोच इज दिस कि मैंने ऑटर बाउंड्री बना लिया, कि मेरे स्ट्रक्चर का ऑटर स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि दिस वेबसाइट कंसिस्ट 4 डिफरेंट डिव, 1 2 3 4। इंटरनल है, इंटरनल हम लोग बाद में जाएंगे, इंटरनल ये सब हम लोग बाद में बनाएंगे, बट मेरा एक्सटर्नल मेरा 4 बन गया। और इसका पहले वाले में आप लोगों को दिखाया ही कि किस तरह से हम लोग उसको लेके आएंगे थ्रू ग्रेड। वो अलग अलग तरीका है, ग्रिड है, फ्लोट है, ठीक है, फ्लेक्स है, और कोई फ्रेमवर्क के हिसाब से। लेकिन हम बेसिक बेयर बोन स्ट्रक्चर में देख रहे कि किस तरह से बनाएंगे। तो मेरा पहला स्टेप हो गया कि मेरा स्केलेटन का 4 हिस्सा खड़ा हो गया, ठीक है। देन व्हाट वी विल डू, हम लोग इंटरनल पोर्शन बनाना चाहेंगे। जैसे अब इसके अंदर हेडर में मेरा कुछ नहीं है, हाँ, नैपबार में भी है, लेकिन हेडर्स में कुछ नहीं है, नैपबार में भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा खिचड़ी है। इस अब पहला है ये दो हिस्सा अलग अलग हम कर लें फर्स्ट, और देन उसके बाद हम इसके अंदर का सेक्शन को भरेंगे।
तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा रो मेरा मेन है, इसमें जाने के बाद हम क्या करते हैं, दो हिस्सा कर लिए, टिल है क्लियर? यस सर। ओके, अब हम लोग क्या अप्रोच करते हैं, बेस्ड ऑन हम लोग डिसीजन से हो कि हम लोग फ्लोट के अप्रोच करें या फिर डिप के अप्रोच से करें। तो इसमें सिंस ये फुल्ली बेसिक सीएसएस है तो इसमें फ्लोट की अप्रोच से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या किए, ये दो हिस्से को, लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम को, अगर हम लोग डिजाइन अपना देखें, डिजाइन देखें और ये लेआउट देखें, तो ये हो सकता है 75% 80% हो और ये कुछ अलग परसेंटेज हो, ठीक है। तो वो आपका फिग्मा डायग्राम में दे देगा कि क्या है, कितना परसेंटेज बनाना है, लेकिन बेसिकली हम लोग आंख से देख सकते हैं कि 80-20 या 75-25 का परसेंटेज है। तो अब हम जब इसका क्लास बनाएंगे तो दो हम क्लास बना ले रहे, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, और यहाँ पे हम दो क्लास दे देंगे, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम। ओके, ठीक है। तो अब जैसा मैंने कहा कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि भैया लेफ्ट कॉलम का मेरा विथ होगा 75% और राइट कॉलम का मेरा विथ होगा 25%. Any question why I use this? इससे क्या हुआ कि ये जो डिवीजन है, ये सेकेंड वाला डिव है, डेट गॉट डिवाइडेड, ये 75% का हिस्सा यहाँ ले लिया, 25% का हिस्सा यहाँ ले लिया। और सिंस आपको इससे पहले वाले बता दिया कि सिंस वी आर यूजिंग द फ्लोट अप्रोच, तो फ्लोट के लिए दोनों को मैंने लेफ्ट में दे दिया। तो पहले ये लेफ्ट कॉलम आ गया, फिर ये राइट कॉलम उसको सेट करके उसके साथ आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक देने से क्या हुआ, मेरा स्ट्रक्चर जो है अब ये हाफ बन के रेडी हो गया। कहाँ तक बन के रेडी हो गया, यहाँ तक बन के रेडी हो गया, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? नो सर। ओके ओके, यहाँ तक हो गया। अब मेरा थर्ड अप्रोच क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें क्या किया है लोग, क्या किया यहाँ पे मैंने लेफ्ट में तो कुछ नहीं दिया, राइट पे जस्ट मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया ताकि कुछ अलग दिखता है, क्योंकि आप डिजाइन में देखेंगे ये देखिए थोड़ा सा कलर्स है कुछ बैकग्राउंड्स में, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी मैंने थोड़ा सा दे दिया है, व्हाइटिश कलर है, रहने दे कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ अब मैंने लेफ्ट कॉलम में अगेन देखा कि एज पर स्ट्रक्चर मेरा राइट कॉलम में भी कुछ है, लेफ्ट कॉलम में भी दो डिव है, दो डिव होना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट कॉलम में गया, लेफ्ट कॉलम में मैंने दो डिव बनाया और राइट कॉलम में भी मैंने दो डिव बनाया, सॉरी 3 डिव बनाया। टिल हियर वी आर क्लियर व्हाट वी आर डूइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजाइन। डिजाइन अभी नहीं देख रहे हैं, डिजाइन देखना भी नहीं है, बेसिक चीज दिया। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट हेडर बनाया, ठीक है, एक बीच का क्लास बनाया, ये सब लंबा लंबा होके चला आया। और एक उसके बाद मैंने अपने स्केच किया, जो किया स्केच पे देखा कि अच्छा ये एक तो बड़ा ऐसा डिव होगा, उसके अंदर दो छोटा डिव होगा, और एक डिव के अंदर ये दो सेक्शन है और इसके अंदर ये 3 सेक्शन है, विदाउट डूइंग एनी सीएसएस। ये मेरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, क्लियर। अब यस अगर मुझे ये बनाना है, ये डिजाइन बनाना है, नाउ आई विल गो टू वन बाय वन। मेरा मेरा स्ट्रक्चर बन गया, मेरा स्केच बन गया, माय स्केच लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे इसको डेटा भरूंगा, दिस थिंग विल शेप अप इनटू अ वेबसाइट। But to create this thing, the most important thing is to create this website, you should create your div और structure like this. Properly अगर आप इसको आप break कर लिए इस तरह से, then you can do it. इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन अगेन आपको कुछ समझना है, इसके बाद ये करने के बाद आपको फिर एक नेक्स्ट स्टेप समझना होगा कि अच्छा मेरा रिस्पॉन्सिव भी थोड़ा होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव कैसे, कि जो ये मेरे जो दिख रहा है ये तीनों चीज, यही चीज पे हम रिस्पॉन्सिव लगा दें तो मेरा काम हो जाएगा। क्या क्या कर दे कि
इसमें देखो कुछ यहाँ कुछ रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कुछ उतना कुछ ज्यादा चीज नहीं दिया। क्या क्या दिया हुआ है कि भाई लेफ्ट और राइट कॉलम को हम 100% कर दें, ठीक है, जैसा पिछले वाले में किए थे। रिस्पॉन्सिव के लिए लेफ्ट और राइट जैसे ही ये टैब के नीचे आया, इसको हम लोग 100% कर दें। 100% माने क्या, ये देखिए टैब के नीचे आया, ये दोनों ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट राइट सेक्शन मेरा लंबा दिखना चाहिए, बिकॉज इसको मैंने मीडिया क्वेरी में लिख दिया कि मेरा जो लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन है, सॉरी ये लेफ्ट सेक्शन और राइट कॉलम है, ये मेरा 100% होना चाहिए। टिल हेयर क्लियर, मैंने ये डाल यस दिया, सर। छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा एकदम स्मॉल करके। और सेम, और उसी तरह से सेम मैंने ये मेन्यू के लिए भी, कि मेन्यू मैंने सोचा कि मेन्यू जब मेरा ऐसा दिख रहा है, वो अगर वो मेरा मोबाइल में चलेगा तो वो भी 100% ले लेना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने एक मीडिया क्वेरी दे दिया कि भाई मेरा मेन्यू भी है, इफ इट कम इनटू मोबाइल इट शुड बी 100%। वो पतला नहीं रहेगा, वो पूरा नीचे पूरा विद्युत लेके अपना आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट टू डू, नाउ ये स्ट्रक्चर हो जाने के बाद यू विल गो टू वन सेक्शन एट वंस एंड प्रोवाइड ऑल द डेटा। ओके, पहले मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू दिस प्लेस। यहाँ क्या क्या लगा सकता हूँ, एनीबॉडी हैव एनीथिंग। इस जगह बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कंटेंट देना पड़ेगा। पहला, हम लोग एक H1 देंगे जो मेरा मेन हेडर होगा, दे भी सकते हो या इमेज दे सकते हो, जो देना है। तो यहाँ देखो, यहाँ मेरा इस तरह का, अगर हम लिंक्डइन का फॉलो करें तो लिंक्डइन इज यूजिंग अनदर अनदर डिव, राइट। वो खुद से एक और डिव यूज कर रहा है जिसमें उसका लेआउट है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर, लेआउट्स है। आप अगर किसी और में जाओ, अगर गूगल खोलो तो उसका एक अलग तरीका है, ठीक है। लेकिन ये कोई कंटेनर ही है, किसी किसी कंपोनेंट के अंदर ही है, उसी तरह का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इसमें उतना तो कर नहीं रहे, अभी छोटा सा काम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कहाँ के ये वाला, इसमें हम लोग ये तो चीज देना है, तो ये हम समझे, अच्छा इसको हम H1 करके दे देते हैं और ये कोई पैराग्राफ करके डाल देते हैं। तो हम लोग आए, अपना हेडर खोले, देखे हम लोग क्या किए, एक H1 करके दे दिए और एक पैराग्राफ करके दे दिए। तो अब क्या हुआ, ये टॉप को पोर्शन मेरा शेप होने लगा। एक मिनट, मैं इसको ना कॉपी करके एक नया में करता हूँ, देन इट वुड बी बेटर, राइट। मैं वहां से कॉपी कर लूंगा। एक्चुअली आई एम नॉट दैट ग्रेट इन HTML, ओके, इसलिए मैं, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। बट आई नो दिस थिंग लाइक हाउ इट इज, हाउ इट वर्क। चलिए, लेट मी क्लीन एवरीथिंग, लेट मी डिलीट एवरीथिंग, ताकि हम लोग एकदम आसानी से पूरा चीज समझ पाए। मेन बात है समझना है, ये तो कहीं से भी कॉपी कॉपी तो कहीं से कर लेंगे। हाउ आवर स्ट्रक्चर लुक लाइक एट दिस पॉइंट, एंड देन हम लोग कॉपी कर लेंगे फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, ओके, अब मेरा ये वेबसाइट कुछ इस तरह का शेप लेने लगा। यस, अब मेरा ये वेब, देखिए अब मेरा ये वेबसाइट, जो मेरा ये इस तरह का डिजाइन बनेगा, ये वेबसाइट बनेगा, इट्स शेप लाइक दिस। वी आर गुड टिल हियर। यस सर। यस, अब अगर हमको इसी को ही कॉपी करना है, इसी को वेबसाइट से बनाना है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये कुछ लिंक है, राइट, ये कुछ लिंक है, तो ये किसी तरह से बनाना पड़ेगा। आपको जो बनाना है उस चीज के लिए आपके पास CSS का क्लास है, बूटस्ट्रैप है, वगैरह है, वगैरह एवरीथिंग है। लेकिन मेन चीज है ये स्ट्रक्चरिंग बनाना, मेन है कि किस तरह से हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। खड़ा हो जाने के बाद उसमें कुछ भी डाल दें, वो डालना आसान है, हार्ड नहीं है, ठीक है। तो अब मेरा मेन स्टेप रहेगा ये लिंक को बनाना। लिंक के लिए क्या किया मैंने, हम सोच रहे कि चलो ये लिंक को हम एक हाइपर लिंक ही डाल दें, ज्यादा उतना झमेला नहीं करें, हम एक हाइपर लिंक ही डाल दें। हाइपर लिंक कैसे डालेंगे, ये ठीक है,
मैं क्या कर रहा हूँ, ये नैव को ओपन करके यहाँ पर हाइपरलिंक डाल दिया। ठीक। अच्छा, हाइपरलिंक डालते ही ये कुछ अलग सा बिहेव करने लगा, ये कुछ अलग सा बिहेव करने लगा। लेट मी रिफ्रेश दिस थिंग। ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से। अगर हम एल डालते, ये डालने से ये नहीं हुआ। लेट मी रिमूव दिस क्लास आल्सो। ओके, हाइपरलिंक डालने से मेरा ये जो वेबसाइट था, ये कुछ इस तरह का होने लगा, इस तरह का हो गया, राइट। पर मुझको तो ये चाहिए था, मुझको तो ये चाहिए था। इट्स मीन कुछ सीएसएस डालना होगा। क्या सीएसएस डालना होगा, मेरा भी तो ये है। और ये दाया क्यों आया वो भी देख लेते हैं। ये दाया क्यों आया है लिंक, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें स्टाइल में लिख दिया है फ्लोट राइट। फ्लोट राइट क्या करता है, जो कंटेंट रहता है, जहाँ पे जो कंटेंट रहता है, उसका पेरेंट का जो जो जगह रहेगा, उसको उस जगह शिफ्ट कराएगा, भेजाएगा। तो मैंने जो ये जो लिंक 4 बोला, लिंक 4 को फ्लोट राइट कर दिया, तो ये हमेशा राइट की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, ये राइट की तरफ जाना चाहेगा, तो इसीलिए वो उसको स्पेस मिला। सिंस ये आपका क्या है, ये आपका इनलाइन ब्लॉक है, वो जितना बड़ा ये टेक्स्ट रहेगा उतनी ही जगह लेगा। तो ये चार, अब तीन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, थोड़ा थोड़ा जगह लिया। और ये पूरा स्पेस इसके पास बाकी था, उसको लिंक 4 को यहाँ आना था। बट सिंस आई यूज फ्लोट राइट, वो भुक करके राइट की तरफ चला गया, बिकॉज उसको यहाँ से यहाँ तक का जगह था। एंड इन इट आई मेंशन ओके फ्लोट टुवर्ड द राइट, दाया तरफ जाओ, इसलिए वो राइट की तरफ चला गया। ओके, जस्ट 1 मिनट हो गया। ये एनी क्वेश्चन फॉर दिस? अच्छा सर, अगर हर एंकर टैग को अलग अलग डिव में रखेंगे तो वो एक के नीचे एक आ जाएंगे ना? एक के नीचे एक आ जाएगा, क्योंकि वो आपका इनलाइन ले लेता है, इसलिए एक के नीचे एक आ जाएगा। हाँ, उसको आप फ्लोट, अगर आप उसको ये ओवरफ्लो डिस्प्ले ऑटो। ब्लॉक कर दोगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देने से वो फिर ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। आई ओके। कैन मीन, अगर मैं इसको दिखा देता हूँ, लेट मी क्लियर दैट थिंग आल्सो। ठीक है, तो ये देखो, ये एक के पीछे एक आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझको, क्योंकि ये इनलाइन हो जाता है, लेकिन अगर मैं किसी भी इनलाइन फीचर को, जिसका बाय डिफॉल्ट इनलाइन है, उसको अगर मैं ये लिख दो डिस्प्ले ब्लॉक, तो क्या होगा कि उसका जो मेन जो बिहेवियर है, दैट विल चेंज इनटू द ब्लॉक। अब ब्लॉक का बिहेवियर होता है कि आपको जितना स्पेस मिले, कुछ गड़बड़ करा क्या, सॉरी इनलाइन, सॉरी इनलाइन लिखना था। हम्म, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपका एंकर से ही होगा, लेकिन सिंस एंकर आपका मीन मीन बाय डिफॉल्ट वो बिहेवियर को आपका फॉलो करता है और क्लिक करने पे होवर इफेक्ट देता है, तो इसलिए हम लोग उससे कर सकते हैं। ठीक है, और डिप से भी हो जाता है, लेकिन डिप से हमको एक एक्स्ट्रा क्लास लिखना पड़ता है, डिस्प्ले इनलाइन। तो ये किसी भी चीज को अल्टर बिहेवियर करने के लिए ये चीज यूज करते हैं। जैसे कि अगर इस डिप का बाय डिफॉल्ट ब्लॉक बिहेवियर है, उसको इनलाइन करने के लिए इस तरह से लिखते हैं। और आपका स्पैन का आपका इनलाइन बिहेवियर है, लेकिन अगर हम उसको ब्लॉक करना चाहें, इसे अगर ब्लॉक करना चाहें कि पूरा जगह ले लेने, तो दो ही दिखाता हूँ, फिर आ जाता हूँ इसमें।
ओके, इसे ये देखिए लिंक 5 and 6, लिंक 5 and 6 सिंस स्पैन का खुद का ही बिहेवियर इनलाइन होता है तो वो यूं है, लेकिन मैं क्लास को हटा भी दूं तब भी ये इसी तरह से बिहेव करेगा, बिकॉज स्पैन हैज इनलाइन बिहेवियर, राइट। वो 5 and 6 यहाँ है, लेकिन अगर मैं इसको बिहेवियर अगर चेंज करना पड़ता तो इसे मैं ब्लॉक कर देता। Sorry. ये सब कंसेप्ट रहना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि अगर कुछ हमको मिल गया कि आपको यही करना है, इसी तरह से करना है, तो आप उस बिहेवियर को अल्टर कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ, ये सारा बात समझ में आ गया आपको सर? ब्लॉक इनलाइन यस क्या है, कब क्या यूज करना है, अगर है तो किस तरह से हम यस लोग सर। चेंज कर सकते हैं। ये किस समय काम आता है, जब कोई आप लाइब्रेरी यूज करते हैं, वो लोग में अगर यूज कर लिया इस तरह से अल्टर, तो इसे अल्टरेशन के लिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद था, ये मेरा 4 लिंक है, ये हम फ्लोट दे करके हम डिजाइन के हिसाब से हम लोग यहाँ पुश कर दिए, ठीक है। Now when I see the design, I see I have to do lots of things. क्या चीज करना है भाई, इसका ये चीज को हमको ब्लैक कुछ कलर्स देना है, बैकग्राउंड में ये होवर में कुछ चेंज हो जाए इस तरह से देना है। तो क्या करेंगे, आई विल कम हेयर और यहाँ पर एक क्लास दिए, क्लास था पहले से, क्या क्लास है, नैप करके कुछ क्लास है, ये रखती है टॉप नैप, ठीक है। ये हम क्लास दिए, ये देते ही मेरा सारा चीज चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देते ही जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो चेंज हुआ। क्या क्या चेंज हुआ आप लोग बता सकते हैं, क्या क्या चेंज हुआ? पहला बात है कि ये कलर आ गया, राइट। फिर ये होवर होने से ये चेंज हो रहा है, राइट। और टेक्स्ट भी अंडरलाइन जो रहता है वो नहीं है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन जो रहता है, जो ये आपका जो लिंक जिस तरह का रहता है उससे थोड़ा सा ये चेंज हो गया। लेट मी शो यू द बिलो पोर्शन, तब आप उसको समझ पाएंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये क्या क्या चेंज हुआ, अब इससे आप समझ सकते हैं। पहला चीज क्या है कि कुछ स्पेसिंग आ गया, राइट। सब स्पेसिंग कैम, इसमें कुछ स्पेस आया, ये बॉर्डर का बैकग्राउंड का कलर आया, देन ये अंडरलाइन जो था ये अंडरलाइन गैप हुआ, करेक्ट। और ये लेफ्ट राइट तो हुआ जो हुआ। तो इसके लिए क्या किया, चलिए हम लोग क्लास देखते हैं। क्लास में क्या किए, ये नेप बार में टॉप, लेट्स गो टू द टॉप, यस दिस इज द टॉप में ओवरफ्लो हिडन कर दिया कि ये फ्लो होगा, कर देने। अब मैंने बैकग्राउंड में जस्ट ये ब्लैक कलर दे दिया। तो क्या किया, ये टॉप नैप था, ये जो पूरा जो ये जो डिप था, डिप के अंदर बैकग्राउंड में सारा ब्लैक कलर आ गया, सिंपल। और उसके बाद मैंने जो भी काम किया, मैंने इस एंकर टैग में काम किया। क्या क्या काम किया, दो एंकर टैग के बीच में कुछ पैडिंग दे दिया, इसके अंदर का अंडरलाइन को गैप कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग एक किसी के अंदर वाला क्लास को अगर हम लोग को चेंज करना रहा तो इस तरह से स्टाइल लिखते हैं। ये क्लास जो टॉप नैव क्लास होगा उसके अंदर का ए जो सेकेंड स्पेस दे के देते हैं दिस, तो ये क्या करता है, ये इस क्लास के अंदर के ये टैग को खोजेगा, समथिंग लाइक दिस। टॉप में देखिए वो बना दिया कि एलिमेंट जिसका क्लास इस तरह से लिखेंगे उसके अंदर में जो ए होगा उसी में ही ये काम करेगा, ये आपका माने कि हिट करेगा, ठीक है। क्या ओके क्या सर। किया हम लोग, क्या क्या किया हम लोग, फ्लोट लेफ्ट कर लिया भाई, मेरा जो टेक्स्ट जो आएगा वो लेफ्ट से दिखेगा। डिस्प्ले ब्लॉक कर लिया, माने जितना बड़ा मेरा एंकर टैग होगा उतना बड़ा ये जगह ले लेगा। कुछ कलर दे दिया टेक्स्ट का, टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया, कुछ पैडिंग दे दिया, और अंडरलाइन को हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने नल कर दिया। क्लियर सर? यस सर।
ये देख के समझ में आ गया कि ये दीज आर द थिंग जो हमने किया वो डाल दिया। तो क्या हुआ कि ये ए जो था अब ये नीचे वाले लिंक से कुछ डिफर हो गया। नेक्स्ट क्या किया कि व्हेनेवर वी होवर दिस, ये देखिए ये व्हाइट कलर ब्लैक हो जा रहा है, राइट। लिंक 1 व्हाइट बिकम ब्लैक और ये इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो अगर आप किसी क्लास के अंदर का कोई टैग के अंदर में कोई प्रॉपर्टी करते हैं, जैसे एंकर टैग में एक होवर है, क्यों डिव नहीं यूज किए, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसको होवर करके चेंज कर पाए। तो ये क्लास के अंदर का एंकर में जब होवर करेंगे, होवर मीन जब इसके पास लेके जाएंगे, तो आई एम चेंजिंग टू थिंग, क्या, बैकग्राउंड कलर फ्रॉम फ्रॉम प्रीवियस ब्लैक कलर टू दिस व्हाइटिश कलर, ओके, रेडिश कलर, ADD एंड टेक्स्ट कलर। कलर जब हम यूज करते हैं तो वो टेक्स्ट के लिए यूज होता है, टेक्स्ट कलर मेरा ब्लैक हो जाएगा। तो इसीलिए जब इसको जब होवर करने लगे, इट चेंज इनटू ब्लैक कलर और बैकग्राउंड चेंज फ्रॉम ब्लैक टू दिस, क्योंकि इसी एंकर टैग में था, इसलिए वो, सिंस मैंने इसमें एंकर का होवर लिखा था, इसलिए वो एंकर का ही होवर कर रहा था। अगर मैं इसे डीप का होवर लिख देता, डीप का होवर लिख देता इसी को जस्ट में, ठीक है, और मैं जब यहाँ जाता तो पूरा चीज का कलर को चेंज कर देता। अच्छा ये तो एंकर के प्रॉपर्टी, हाँ इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, सॉरी। हुआ सर, ये आया, अच्छा ये काम नहीं कर रहा क्योंकि डिप पे ये होवर नहीं लगता। ठीक है, एंकर पे ही होवर आता है, ये एंकर टैग का ही खुद का प्रॉपर्टी। तो देखिए हम लोगों ने थोड़ा सा करके ये, इसको अब मैं हटा लेता हूँ। मैंने अपना दो पोर्शन, अगर मेरा ये स्ट्रक्चर सही से मैंने बना लिया, स्ट्रक्चर सही से मैंने बना लिया, तो अब जिस तरह का ये बना हुआ है, मैं एक एक करके मैं नीचे जा सकता हूँ। एंड इट वोंट टेक मच मच एफर्ट, मेन एफर्ट होगा आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर पूरा होने का। अब यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक तरह का, इसको कार्ड बोलते हैं, एक तरह कार्ड है जिसमें हेडिंग है, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कुछ इमेज है और कुछ टेक्स्ट है, 4 सेक्शंस है, राइट। यहाँ पर भी देखिए वैसा 4 सेक्शंस है। माने मेरे डिव के अंदर ये जो लेफ्ट पैनल के अंदर मेरा ये जो लेफ्ट वाला है, कहाँ गया ये कार्ड्स करके, लेफ्ट के अंदर मैंने क्या किया, 2 मेरा डिव होगा तो 2 मैंने कार्ड बना लिया, ठीक है। अब मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ अपना पुराना हिस्से, एक कार्ड को मैंने ओपन किया और यहां से यहां तक डाला। और फिर से हम इसको चेक करेंगे कि किस तरह से ये बिहेवियर अपना चेंज किया। अच्छा, पहले उससे जाने से पहले क्या क्या चीज चाहिए, ये कार्ड को बनाने के लिए, ये पूरा एक डिप को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक हेडिंग चाहिए, करेक्ट। एक हम कह सकते हैं एक पैराग्राफ चाहिए। अच्छा ये टेक्स्ट कुछ चेंज है तो ये कुछ, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट में डिफरेंस है, राइट, ये डेट वाला ये कुछ है, ठीक है, जो भी हो एक पैराग्राफ चाहिए। उसके बाद एक डिप चाहिए जिसमें कुछ इमेज हो, क्योंकि ये पूरा ले ले रहा है, इसलिए मैं इसे डिप के अंदर डाल सकता हूँ। और अगेन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो टेक्स्ट तक ही जगह लेना है, तो वो इसको हम स्पैम ले सकते हैं। और नीचे अगेन पूरा एरिया कवर किया हुआ कोई एक टेक्स्ट है। तो 4-5 सेक्शन हमको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्ट के अंदर, इसके अंदर हम लोग 4-5 सेक्शन जैसे लिखा हुआ था हम लोगों ने वैसा कर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक H2 ले लिया टाइटल और एक H5 ले लिया, उसको और छोटा दिखाने के लिए साइज को H5 ले लिया। एक डिव ले लिया, डिव के अंदर कुछ इमेज डालेंगे, ठीक है। और ये टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ और एक और टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ। इसको जैसे ही सेव किया, दिस थिंग बिकम लाइक दिस। कहाँ गया, इसको रिफ्रेश करता हूँ। नाउ मेरा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों बन गया, कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए कि क्यों बना, ये ऐसा क्यों बन गया। कि ये सारा चीज को ठीक ठाक से ले लिया, क्या कोई क्लास यूज किए, देख लेते कार्ड्स वाला क्या कर रहा है। अच्छा नीचे वाला में लिया है इसलिए नीचे दिखा रहा, कोई बात नहीं।
तो हम लोग कार्ड्स का क्लास में क्या यूज किया कि ये थोड़ा सा, अगर हम बिना क्लास का यूज करते, चल पहले बिना क्लास का दिखा दे, ये हटा लेते हैं। हाँ, अब देखिए क्या हुआ, ये इस तरह का आ रहा है, राइट, ये इस तरह का आ रहा है, लेकिन मेरा वेबसाइट में आप देखेंगे तो कुछ जगह छुटा हुआ है, कुछ बॉर्डर फॉर्डर दिया हुआ है, कुछ जगह स्पेसिंग कुछ छुटा हुआ है, ठीक है। ये लिंक के आई के बाद से देखिए ये जगह ले रहा है, बीच से ले रहा है, और मैंने जब क्लास हटा दिया तो ये देखिए पूरा जगह ले रहा है, और राइट साइड में छुटा हुआ है, लेकिन उस तरह से समझ में नहीं आ रहा है। माने कुछ ना कुछ तो सीएसएस ऐड करना होगा। क्या करना होगा सीएसएस, इसको थोड़ा सा हमको लेफ्ट लाना पड़ेगा, बिकॉज थ्रू दिस आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा इस तरह का ये थोड़ा लेफ्ट गया हुआ है, मेरा ये नहीं गया हुआ है। टॉप में भी देखो ये सट रहा है, अब मेरा जो डिजाइन है वो थोड़ा नीचे था, राइट। तो मैंने क्या किया, एक कार्ड नाम का क्लास बना लिया, ठीक है। कार्ड में क्या किया, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिग्मा डिजाइन के हिसाब से मैंने थोड़ा सा स्पेसिंग दे दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे दिया। कुछ सर, कोई प्रॉब्लम सर इसमें? नथिंग, एकदम आसान से सर, ठीक है। यस सर। और ये इमेज की जगह इमेज यूज कर सकते थे, लेकिन मैंने बैकग्राउंड दे दिया ताकि कलर करके लग पाए कि इमेज, अगर इमेज भी होगा तो यहाँ पे हम लोग इमेज का एसआरसी दे देंगे। तो मैंने क्या दे सकते थे, या फिर उसी 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 तरह से मैंने यहाँ पे एक इमेज का बैकग्राउंड करके एक इमेज बना दिया। इसके जगह तुम अपना इमेज का यूआरएल भी दे सकते थे, तो कोई बात नहीं। इसको अगर हम लोग ये इमेज की जगह, इस जगह हम लोग कुछ नहीं दे करके img src इक्वल टू images images, चलिए alt चलिए, ये इस तरह से मैंने इमेज का भी दे दिया। तो अब देखिए, अब वेबसाइट थोड़ा सा और चेंज होगा, हो रहा है। ये तो पुराना है, देख के हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो गया सर, ये ऐसा क्यों हो गया जब इमेज दिए तो? बिकॉज बिकॉज ये जो क्लास था, ये क्लास इस जगह है, मैं इस क्लास को हटा करके इसके अंदर दे देंगे, ठीक है। और ये फेक इमेज का हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेरा इमेज बड़ा था, मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से भी डाल सकते हैं, राइट। कुछ शेप हो रहा है। अब देखिए डिजाइन भी मेरा लमसम अपने हिसाब से ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा हो गया। बड़ा के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग हाइट भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं, हाइट को ऑटो कर देंगे तो वो आपका इशू नहीं करेगा शायद। या फिर हाइट, इसके हिसाब से हाइट हम डाल सकते हैं, इसका हाइट कितना होगा डाल सकते हैं। अच्छा सर, इसमें लेफ्ट और राइट सेक्शन में हमने हार्ड कोड कर रखा है कि एक 75% लेगा लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन लेगा 25%। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर बॉर्डर जब हम डाल रहे थे तब तो इशू आ रहा था ऊपर नीचे का, तो अब इशू क्यों नहीं आ रहा हो?
अभी भी आएगा, अगर मैं अभी भी इसमें बॉर्डर डाल दूंगा तो अभी भी इशू आएगा, ठीक है। जैसे बीच में हमने उसमें जगह भी छोड़ रखी है ना, लेफ्ट और राइट सेक्शन के बीच में। वो ठीक है, वो बता रहा हूँ, वो पैडिंग दिया ना, वो बॉक्स के अंदर आया रहा। ये हटा देता हूँ इमेज को, एक इमेज जैसा वैसा रहने देता हूँ। अच्छा, हाइट 200 पिक्सल था इसमें। देखिए, मैं अगर पूरा में अगर मैं बॉर्डर दे दूँ इसी डिजाइन को, अभी ठीक है ये डिजाइन, अभी ये ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये ठीक है। अब मैं पूरा में अगर बॉर्डर दे दूँ, पूरा में अगर बॉर्डर दे दूँ, पूरा में अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर 2px सॉलिड और मैं करने देता हूँ ब्लैक। अब ये डिजाइन देखिए शायद टूट जाएगा, शायद टूट सकता है, और अगर कुछ और क्लास की वजह से वो मैं यहाँ नहीं टूटा, अगर इसको पिक्सल कर लेता हूँ, ये तो अब ये गिर जाएगा, ठीक है। तो जब तक इसको ले पाया, ये अभी भी डिजाइन तो सर नहीं। अब भी इसका मेंटेन है। हाँ, तो वो आपका, अच्छा उसमें ओवरफ्लो दिया था, उस वजह से शायद वो देखना पड़ेगा किस लिए है, लेकिन जनरली वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्लास में प्रॉब्लम होता है कभी कदा। नहीं हुआ बेटर है, नहीं हुआ, लेकिन वो स्पेसिंग दाया बाया होने से वो प्रॉब्लम ले लेगा। लेट इट बी। तो अब मेरा लेफ्ट साइड ही बन गया, लेफ्ट साइड ही बन गया ये वाला, ठीक है। राइट साइड भी देखा कि सिमिलर पैटर्न है, हम इसी चीज को कॉपी कर करके बॉटम वाला भी बना लेते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस चीज को अगर आप सही से समझ गए कि क्या आपको करना है, देन, और आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक बार बना लिए, देन इट जस्ट अ मैटर ऑफ कॉपी पेस्ट थिंग। ओके, तो जो क्लास आपका, देखिए जो क्लास ऊपर में था सेम था, तो हम लोग सेम क्लास बनाएंगे, इसके लिए फिर से अलग से क्लास नहीं बनाएंगे। जो सेम क्लास जो ऊपर यूज किए थे कार्ड का, वही सेम क्लास इसमें भी यूज कर लेंगे और वो काम करेगा, ठीक है। यस इट्स अ सर। थिंग कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज करना है। अब इसके इसके इस साइड में भी, इसके राइट साइड में भी अगर हम डिजाइन देखें, राइट साइड में भी तो कुछ कुछ सेम है। देखो ये बॉक्स टाइप का, ये बैकग्राउंड कुछ व्हाइट किया हुआ है, तो ये जो कार्ड्स है ये बड़ा है और इसी का ये छोटा वर्जन है, ठीक है। बाकी डिजाइन तो एकदम सेम है, अगर डिजाइन अलग होगा तो हम उसमें अलग देंगे। इसमें आपका 4 या 5 सेक्शन था, 1 2 3 4 5, इसमें जस्ट 3 सेक्शन है, तो सेम चीज सेम क्लास को रहने देंगे। और इसके जो 3 सेक्शन में जो मुझे डेटा लगेगा, मैं जाऊंगा और इसे कॉपी करूंगा। 3 सेक्शन गया, अच्छा ये रहा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो होगा उसे कॉपी करके डाल दूंगा। डन। और मैंने मीडिया क्वेरी दे के रखा हो कि भाई ऐसा ऐसा काम होगा तो आप यू काम करना, तो ऑन योर रिक्वायरमेंट यू डेवलप दिस वेबसाइट, ठीक है। अब मेरा डिजाइन जो इस तरह का लग रहा था, नाउ इट इवॉल्व एंड बिकम लाइक दिस। सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू क्रिएट अ वेबसाइट। इट्स अ वेबसाइट, राइट, इट्स अ सिंगल पेज वेबसाइट आल्सो। मीन इसमें कोई खराबी नहीं है, अगर मैं इसमें इमेज सारा अगर अच्छा से दे दूंगा, इट लुक फाइन, इट लुक गुड, राइट। कितना टाइम लगा इसको डेवलप करने में सर? ज्यादा टाइम लगा नहीं है। क्लास भी देखेंगे तो आई हैव यूज्ड द मिनिमम क्लास, एकदम मिनिमम, ठीक है। सीएसएस यू विल सी एकदम मिनिमम सीएसएस है। और क्यों सीएसएस यूज कर रहे हैं वो सारा चीज एकदम आसानी से लिखा हुआ है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस सीएसएस। और ये जो मीडिया क्वेरी भी क्यों लिखा, यू कैन नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई लाइक कि आपका मोबाइल में कैसा बिहेव करता है, क्यों कर रहा है, और आपका डेस्कटॉप में क्यों बिहेव करेगा, राइट। ये मोबाइल में आपका जो नैप बार है ये लंबा पूरा हो जाएगा, लेकिन डेस्कटॉप में जैसा बिहेवियर आप डिफाइन किए क्लास से,
वो इस तरह से बिहेव हो रहा है, राइट। सिमिलरली आपका मोबाइल यहाँ पर 800 पिक्सल में ये 100 लेफ्ट राइट कॉलम 800 पिक्सल का 100 ले लेगा, जो कि ले चुका है। लेकिन अगर उसका बड़ा अगर डिवाइस रहेगा तो इट विल टेक 75 at 25 portion. Let me show you here. राइट, बड़ा में ये इस तरह से ले रहा है, और जैसे ही इसको मैं छोटे डिवाइस में जाऊंगा इट बिहेव डिफरेंटली। So that's it, आज के लिए इतना ही सर। आई नो इट स्टार्टेड वेरी बैडली। नहीं सर, बढ़िया है। एनी क्वेश्चन फॉर नाउ? नो सर। ये देखिए रिस्पॉन्सिव के हिसाब से ये आपका सारा वेबसाइट आपका अलग हिसाब से आपका काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चन? सर कोई और है नहीं। स्काइप बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, डोंट नो व्हाई। सर जॉइनिंग इश्यूज हो रहे हैं बहुत। ओके, सो फॉर टुडे आई थिंक दैट्स इट, यहीं तक, ठीक है। तो होपफुली आप लोग इसको कर पाएंगे, और मैं इसको कोशिश करूंगा इसको गेट में डाल दूं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा पेज बनाया है मैंने, ठीक है। हर एक चीज के लिए छोटा छोटा पेज बनाया है, या फिर कहीं भी पर आप वेबसाइट आप फॉलो करेंगे, कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे, यू विल गेट एवरीथिंग। मैंने भी कहीं से कॉपी करके ही किया हो, तो आपको वहां से आपको आराम से मिल जाएगा सारा चीज। बट इससे अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आई कैन इजिली रिलेट कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, नहीं क्यों नहीं है। और कुछ इस तरह का वेबसाइट कहीं भी देखें, जो भी ट्यूटोरियल्स में कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको एचटीएमएल सीएसएस का बना हुआ दिखता है, कोशिश करें इसको बनाएं। अब बनाने का जिस तरह से मैंने तरीका बनाया है, बताया है कि पहले पेन पेंसिल में उसका मेन स्ट्रक्चर बनाए, छोटा बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, बड़ा के बाद उसको पार्ट में डिवाइड करें। जैसे अगर हम इसी में ही इफ आई वांट टू गो टू टू इनहैंस इट, अगर हमको इसका इनहैंस करना है कि नहीं, मेरा मेरा ये स्ट्रक्चर मेरा ऐसा होगा, तो क्या होगा, आपका हेडर में चेंज होगा, राइट। हेडर में अगेन ये सब सेक्शन को आप किसी में डिवाइड करेंगे कि ये एक सेक्शन यहाँ से यहाँ तक कुछ परसेंटेज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ परसेंटेज हो रहा है। या फिर इसको अगर हम बोले 20% ये है, 20% ये है, ये आपको फिगर डिजाइन में बता देता है कि कौन चीज कितना परसेंटेज है, कौन चीज कितना पिक्सल्स है। तो इससे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और अगेन जिससे जैसे हमने नैप बार डाला, उस तरह से इसमें आइकन्स और ये पोर्शन को डिजाइन करके डाल सकते हैं, राइट। तो मेरे डिजाइन अब ऑटोमेटिकली अपना शेप ले लेगा जैसा अपना बनाना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका ये जो बेयर बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, चार मैंने तीनों तरीके से, ये तो मैंने फ्लोट के तरीके से बताया, आपको ग्रिड के तरीके से, फ्लेक्स के तरीके से, ये स्ट्रक्चर आपका पूरा पूरी आपके हैंड्स ऑन होना चाहिए, तीनों चारों तरीके से। कोई किसी फ्रेमवर्क के तरीके से, मैंने कि बूटस्ट्रैप के तरीके से बोले ग्रिड में, या फ्लेक्स के तरीके से, और ये जो सिंपल तरीका था आपका फ्लोट के तरीके से। तो ये अगर ये चीज तीनों के तरीके से आप लोग एकदम हैंड्स ऑन कर ले, देखिएगा कोई भी वेबसाइट आप इजीली बना पाएंगे, अगर आपको ये जस्ट तरीका पता है। सेकेंड थिंग, क्या प्रॉपर्टी देने से क्या होता है, मार्जिन देने से क्या होता है, पैडिंग देने से क्या होता है, इनलाइन क्या हुआ, ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक को इनलाइन में कैसे यूज करना है, इनलाइन को ब्लॉक में कैसे यूज करना है, नैप बार क्या है, नैप बार कब यूज करेंगे, या फिर अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखता है, तो ये स्ट्रक्चर ये इसको क्या बोलते हैं, ये कार्ड्स, हम लोग तो कार्ड्स बोलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये कार्ड्स हुआ, ये बटन हुआ, बटन के लिए किस तरह से हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे सीएसएस एचटीएमएल का, ये इस तरह से आ रहा है, ये मॉडल किस तरह से पॉपअप हो रहा है, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये चीज पे दिमाग में डालना। या फिर यहाँ पे देखिए ये जो स्क्रॉल बार आया, तो किसी भी जगह में हम लोग स्क्रॉल बार कैसे ला सकते हैं, छोटी छोटी चीज। अब बड़ा चीज में बस ये है, ये अगर इस तरह का आप छोटा छोटा अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख गए थ्रू थ्रू दिस डिजाइनिंग, आई थिंक दैट्स ऑल। ये आपको यही जरूरी है आपको, बाकी सारा चीज टाइम के साथ, वक्त के साथ सारा चीज आ जाएगा। तो किसी भी आप ट्यूटोरियल को देखिए, उसमें छोटा छोटा चीज कैसे काम कर रहा है वो देखो, और कोई भी वेबसाइट, फुल वेबसाइट बनाओ, कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी जाओ। जैसे आप कोई भी, जैसे ट्यूटोरियल पढ़ाता क्या है आपका, एक है W3 स्कूल, राइट। यस सर।
W3 स्कोर इसी से उठा कुछ भी कोई भी टॉपिक है, हम भी यहीं से हम भी यही सब जगह से ही पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं से भी। तो उसमें देखिएगा आपको CSS ट्यूटोरियल किसी का भी एक उठा करके उसको समझने की कोशिश करो। समझने के बाद हर एक में एक वेबसाइट बनाने का दिया होगा। ये HTML CSS का कुछ भी उठा करके यहाँ देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको सारा चीज दिया हुआ। हम बोल रहे सारा चीज आपको याद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, बट क्यों यूज करते हैं वो थोड़ा देख करके, और इसको डायरेक्टली रिलेट करो कोई वेबसाइट से। अगर ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसमें ये ड्रॉप डाउन कैसे आया, ये ड्रॉप डाउन कैसे आया, यू शुड नो, लाइक ये ड्रॉप डाउन कैसे ला सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स कैसे ला सकते हैं, ये आइकन करते हैं। और कोई किसी भी वेबसाइट का एक तो जस्ट जा करके ट्राई करो, और ट्राई टू मेक अ वेबसाइट, ट्राई टू मेक अ कॉपी ऑफ एनी वेबसाइट। जैसे अब जैसे लिंक्डइन का एग्जांपल दिया, अब फेसबुक भी देखिएगा तो सारा का स्ट्रक्चर देखिएगा, बेयर बोन स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, वो आपका यही स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। या न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़पेपर को आप बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपका वेबसाइट का सबसे मैंने कि अगर सही से अगर यूज होता है वेबसाइट बनाने का तरीका, तो आपका न्यूज़पेपर में ही दिया हुआ है। अब ये भी अगर ये पेज है देखिएगा, आपको ये पेज भी आप अभी जो डिजाइन बना है उससे आप इस फेसबुक को भी आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। अब आपको बोलेंगे कि अगर फेसबुक का ये डिजाइन को कॉपी करना है, तो आप अब बता सकते हैं अच्छा कैसे कैसे इस पे कॉपी करना है, कैसे कीजिएगा। अब बोले अच्छा मैं टॉप में एक सेक्शन बनाऊंगा हेडर, जिसमें ये सारा चीज होगा, ठीक है। अब ये सारा चीज देख करके आप समझ पाइएगा अच्छा ये 33% में तोड़ के रखा है, तो 33% में मैं एक सर्च बार दूंगा, ये 33% का टॉप में मैं ये 4-5 आइकन दूंगा, और ये 33% में ये कुछ होगा, और इसको मैं फ्लोट राइट कर दूंगा इस पोर्शन का, तो ये राइट चला जाएगा, करेक्ट। देर एक बड़ा ऐसा मेरा डिव होगा जो मेरा लेफ्ट रहेगा, मिडिल में बड़ा ऐसा डिव रहेगा, फिर राइट में मेरा एक और डिव रहेगा। फिर उसके अंदर में जा करके ये सब चीज देने का काम करूंगा, इसके अंदर मिडिल में जा करके फिर इसको फिर छोटा सा तोड़ूंगा, फिर अंदर इसको तोड़ूंगा, फिर राइट का पोर्शन को मैं अंदर से अलग से तोड़ूंगा। लेकिन यू शुड नो हाउ टू क्रिएट द बेयर बॉल स्ट्रक्चर, मीन द मेन स्ट्रक्चर लाइक दिस। अगर आप इस तरह से आप उतारना समझ गए तो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट योर यूआई। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज बहुत ज्यादा हो गया। So next day I will start with React, JavaScript. I would say I would start with JavaScript